Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about sugar refining. In last lecture, we have done with sugar clarification process. When we obtain the raw sugar, that is still there. I have already told you about the difference between raw sugar quality and refined sugar quality in another lecture. Now we are going to work on sugar refine. I mean, the how can we get the refined sugar? Right, there are basically two types of refineries. Number one is stand-alone sugar refinery. In stand-alone sugar refinery, you purchased raw sugar from raw sugar manufacturer and you have just done the refining step. While in case of while in case of back end refinery, the other type is back end refinery. In back end refinery, the raw sugar is first manufactured and then continuously taken to the second step of refining. It means that the manufacturing of raw sugar and processing of canes and refining is at the same premises. The conversion of an existing direct plantation white sugar mill to produce refined sugar will make it a back end refinery. The conversion of an existing direct plantation white sugar mill to produce refined sugar will make it a back end refinery. Okay, what are the advantages of back end refinery? The raw sugar quality can be maintained as per requirement of the refinery. Second, the return and a runoff from the refinery can be sent back to raw house for further processing and giving better yields. In case you get raw sugar quality of not of your required quality, you can send that back to the raw sugar processing plant where that will be done according to your requirements. Minimal additional requirements of steam and power can generally be met from existing utilities. Like you can use the same boiler for steam production. Similarly, no additional cost on storage, handling, transport, and inventory of raw sugar. लाइक जब भी आप रा शुगर परचेज करते हैं आपको रा शुगर जो है वो उसकी ट्रांसपोर्ट उसकी स्टोरेज का कुछ ना कुछ करना पड़ता है स्टैंड अलोन रिफाइनरी के अंदर बट यहाँ पर आप उतनी ही रा शुगर बना रहे हैं जिसको आप रिफाइन कर सकें सिमिलरली फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस वेरियस ग्रेड्स ऑफ शुगर यहाँ पर आप जो है वो अगर ब्राउन शुगर प्रोड्यूस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं नेक्स्ट ये हमारे हमारे पास एक जो है वो छोटा सा शुगर रिफाइनिंग का एक ड्राई शुगर जो है उसकी एफिनेशन प्रोसेस होता है सबसे पहले फिर मेल्टिंग होती है फिर क्लैरिफिकेशन होती है क्लैरिफिकेशन थ्रू कार्बोनेशन फॉस्फोफ्लोटेशन then pressure filtration and through multi-bed filters then decolorization is done through ion exchange resins granular activated carbon powdered activated carbon then evaporation later crystallization is done through Messiquet boiling 1 Messiquet boiling 2 and Messiquet boiling 3 and then bag boiling later on drying and bagging of refined sugar was done okay the main step for removing color and impurities in sugar refinery first you have to done carbonation and then phosphoflotation in carbonation process this process relies on the use of carbon dioxide and the lime for forming calcium carbonate precipitates the carbon dioxide is obtained from the boiler flue gas and the lime is added to the melt prior to the carbonation. Multiple stages are used to bring the final pH to 8.4. It has already been discussed in the process of clarification that why we try to keep the sugar
pH so high, it means in alkaline, because in at when you lower the pH, बाद में जो हमने प्रोसेस करना है उसके अंदर ये SO2 जब यूज़ करेंगे तो इसकी pH रिड्यूस होती है। सल्फाइटेशन से जो रिडक्शन होती है पीएच की, वो इनिशियली ही हमने पीएच इतनी, जब पीएच लो होती है तो क्या होता है कि हमारा जो है वो शुगर डिग्रेडेशन का प्रोसेस हो सकता है, शुगर इन्वर्शन का प्रोसेस हो सकता है। सो द फ्लू गैस हैज़ टू बी स्क्रब्ड एंड SO2 रिमूव बाय पासिंग थ्रू वाटर प्रायर टू द इट्स यूज फॉर कार्बोनेशन. A substantial quality of water gets used in the milk of lime, and this lowers the Brix of the melt, subsequently requiring higher steam quantity for evaporation. For certain melts, the carbonation proceeds better at lower bricks, hence evaporators are required to bring back to bricks to higher level. पहले जो है वो ब्रिक्स कम होनी चाहिए ताकि हमारी जो कलर ऑफ सोल्यूशन जो है वो जल्दी हो सके, पीएच मेंटेनेंस हो सके, इवेपोरेशन तो बाद में भी हो जाएगी. Carbonated melt is filtered through process filters using filter aids for pre-coating. नेक्स्ट हमारे पास फास्फो फ्लोटेशन है. उस प्रोसेस में क्या होता है, ये बेस करता है बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोक बनता है दैट कैप्चर द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड कलरिंग मैटर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म बाय द यूज ऑफ स्पेशल कलर प्रेसिपिटेंट्स. बेसिकली जितने भी कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं उसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इस कैल्शियम फॉस्फेट के साथ. अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद रहेंगी तो आपकी जो कलर है आपकी शुगर का, वो कभी भी कम नहीं हो सकता, चाहे आप जितनी मर्ज़ी उसकी क्लोरिनेशन करते रहें, उसका उसमें रंग काट डालते रहें. द conglomerate of these flocks precipitates suspended impurities floated with the aid of air and removed as scum, जिसको हम थ्रू फिल्ट्रेशन जो है वो रिमूव कर लेते हैं. Clarified melt is filtered through a multi-bed filter before it goes to the next stage of decolorization, as I have discussed in the diagram, flow sheet diagram. Secondary decolorization is a batch is of two types. Number one is batch ion exchange. Second is continuous ion exchange. Let's have a look on both of basically batch as the name indicate. Batch में जो है वो एक continuous batch जिसके अंदर हम जो है वो आयन एक्सचेंज जो भी केमिकल है वो डालेंगे और उसके बाद उसको रिकवर कर लेंगे. कंटिन्यूस में कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें मुसलसल जो है वो केमिकल ऐड कर रहे हैं थ्रू. मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स डाल दूंगी जिसके अंदर जो है वो बैच आयन एक्सचेंज एंड कंटिन्यूस आयन एक्सचेंज जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं, सो दैट द इंटरेस्टेड पीपल कैन विजिट दोज, go through those documents for secondary decolorization. What is important for my student is just to have a knowledge of batch ion exchange and continuous ion exchange. What is the difference? कलर रिडक्शन इनकन्सिस्टेंट होती है इसमें बैच आयन एक्सचेंज में, जबकि कंटिन्यूस में थोड़ी कंसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द डे. रीज़न इन्वेंट्री ऑफ कोर्स हाई होती है, केमिकल भी हाई होंगे, एफ्लुएंट जनरेशन भी बहुत हाई होगी, स्वीट वाटर जनरेशन भी हाई होगी, बैगिंग ऑफ शुगर अप टू थर्ड मेसिकुएट इन स्ट्रेट बॉइलिंग स्कीम इज़ पॉसिबल है. यहाँ प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी जो है वो आप अर्ली कर सकते हैं. फिर स्टीम कंजम्पशन हाई है. इस सारे प्रोसेस के अंदर जो कंपैरिजन किया जाता है उसमें बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं बैच आईईआर के और बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं कंटिन्यूस आईईआर के. ब्राइन रिकवरी है नॉन इकोनॉमिकल होती है जबकि कंटिन्यूस में फिजिबल होती है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बैच आईईआर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस. ज़ीरो एफ्लुएंट जो हैं वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होते बैच आईईआर में, जबकि प्रैक्टिकेबल होते हैं इन कंटिन्यूस आईईआर में. स्टैंड बाय रिक्वायरमेंट मस्ट है, कंटिन्यूस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. वाटर कंजम्पशन हाई है, बैच में 50% लेस है एज़ कम्पेयर टू बैच आयन एक्सचेंज रीजन्स. इसी तरह लाइकर फ्लो पैटर्न जो है चैनल फ्लो ड्यू टू फ्री बेड है, जबकि यहाँ पर चैनलिंग नहीं होती कंटिन्यूस में. इसी तरह ऑटोमेशन पॉसिबल है लेकिन मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है. इसमें कंप्लीट कंटिन्यूस में कंप्लीट जो है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है सारा. दिस इज बेसिकली द कंपैरिजन बिटवीन बैच एंड आयन एक्सचेंज एंड द वन शुड अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट, अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्टिविटी. हमारे पास जो
डीकलराइजेशन के लिए आयन एक्सचेंज रेजन्स में दो तरह की कार्बन यूज़ होती है। एक है हमारे पास ग्रैनुलर कार्बन, जो कि सिमिलर होती है पर्टिकुलर रेजन बट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अराउंड 1 mm and is not perfectly spherical in shape. It can also be considered as a sponge with a sugar solution going into the pores of the particular to be decolorized. In the case of carbon, the decolor इसके ऊपर जो एक्टिव साइट्स होती हैं, ये साइट्स जो हैं ये इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर जो है जज्ब करके तो इसको जो है प्रोडक्ट को इम्प्योर कर देते हैं, प्योर कर देती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये कार्बन हैज़ टू बी डी स्वीटेंड एंड रिमूव्ड। इसके बाद ज़ाहिरी बात है इसके अंदर बहुत सारी शुगर है, वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए इसकी वॉशिंग होती है और ये दोबारा से यूज़ हो सकती है in next process. In small installation, the plant will consist of several granular carbon vessels and a system to transfer the carbon into and out of the vessel to the furnace. जब उसकी कॉलम वॉशिंग होती है उसके लिए जो है कार्बन को बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी स्मॉल इंस्टॉलेशन में लार्जर इंस्टॉलेशन में इसमें कार्बन आप निकाल सकते हैं, जबकि लार्जर जो इंस्टॉलेशन है वहाँ पर कार्बन को रीवाइविफाइड किया जाता है। कार्बन कॉलम जो है वो स्मॉल प्रोपोर्शन में यूज़ होते हैं। समटाइम जो है वो क्लीन इन प्लेस का प्रोसीजर होता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन और क्योंकि कॉस्ट भी तो हमने देखनी है ना। ग्रैनुलर कार्बन इज ऑल्सो गुड एट रिमूविंग अदर सच एज फ्रॉम अमाइनो एसिड एंड सो प्रोवाइड फर्दर क्लीन अप कैपेबिलिटी। देखें सिर्फ हमारे पास जब हमने रॉ शुगर बनाई थी तो हमारे पास सुक्रोज के अलावा हर चीज़, चाहे वो अमाइनो एसिड हैं, चाहे वो उसके अंदर कुछ भी है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इम्प्योरिटीज़ हैं। उन सबको रिमूव करना है स्टेप बाय स्टेप, चाहे हम कार्बोनेशन से करें, सल्फाइटेशन से करें, फॉस्फोफ्लोटेशन से करें, या हम ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन से करें या पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन से करें। So this is of limited use where the carbon is before crystallization, because the boiling in the pan tends to remove these impurities in the vapor. It would be useful in liquid sugar application where the sugar is not crystallized. Next is powder activated carbon. Powder activated carbon works in the same way as granular activated carbon in the active carbon sites, absorbing the color in the sugar solution. Small size of the powder carbon particles mean the color is absorbed more rapidly than the granular carbon, and so a small amount is gently mixed in the sugar solution. The carbon is mixed with the diatomaceous earth filter aid and filtered in a pressure relief filter. आपने जो है वो अपने पहले सोल्यूशन जो है उसको कार्बन फिल्टर्स जो हैं हमारे पास उनके ऊपर डाला था। यहाँ पर आप जो है पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन उसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद आप प्रेशर एड फिल्टर की मदद से उसको अलग कर देंगे। The waste filter aid, the carbon is then dumped since it cannot be reused. Of course, जब आपने उसको रिमूव किया है उसके अंदर से तो उसको वॉश करने की क्या, तो क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स हैं कि वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकते। सफिशेंट वर्क उन्होंने कर लिया, दे सर्व द पर्पस, देन दे आर ऑफ नो यूज़। ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ पाउडर कार्बन यूज तो उतनी ही ज़्यादा डीकलराइजेशन होगी। एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ 50% कलर रिमूवल कैन यूजुअली बी obtained with a carbon addition of 0.1% of the sugar solid. This can be improved by increasing the quantity of carbon up to 0.5% or solid to give a color removal of up to 80%. द अभी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एक हमारे पास कार्बन दोबारा से यूज़ नहीं हो रही, दूसरा हम जो प्रेशर लीफ फिल्टर्स यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव हैं। इस वजह से ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन का, ऑल्दो इट गिव्स अ बेटर रिजल्ट बट इट इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन। Here is a simplified flow diagram in which you can see raw sugar affination में 50% इसमें impurities remove हो जाती हैं, phosphoflotation carbonation में 50% रिमूव हो जाती हैं। फिर आयन एक्सचेंज, ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन और पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन, ये तीनों 50 से 80%। उसके बाद पैन बॉयलिंग जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है वो बॉयल हो जाती हैं, फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मज़ीद इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं और हमारे पास रिफाइंड शुगर दैट इज़ अराउंड 99.5% pure. Thank you very much. This was all about. Now we will have a lecture about comparison between both type of sugar, raw sugar and refined sugar, and after that we will start with the confectionery. Thank you so much.